Namaskar to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss third part MCQ KVS principal exam related to the administrative part. The exam was conducted on 8th February 2023. Already 50 questions already I have discussed. Today again administrative part I will discuss from question number 51 to 75. Because you know that in administrative part 100 questions we are coming. So today I will discuss question number 51 to 75. So my friends, please subscribe my channel, like my channel and share my channel, so that you can get quality video in subsequent time. So you see my WhatsApp number 8327782034. If you need any PDF related to the different parts, so you contact with me in my WhatsApp number 8327782034. It means which video already I have uploaded, the PDF of these videos available with me. So if you need, then contact with me in my WhatsApp number. My Telegram channel link is there, t.me/BAPI2034. Just again I am telling, those videos already I have uploaded, their PDFs are there. Their PDFs available with me. So if you need, then you contact with me in this number. Okay. So now I am going to discuss. Okay, today 25 questions, question number 51 to question number 75. You see the question number 51. All cases involving loss of government money arising from erroneous or irregular issue of checks or irregular accounting of receipts will be reported to. यदि गवर्नमेंट मनी लॉस होता है, कारण क्या है ना, ड्यू टू इरेगुलर इश्यू ऑफ चेक्स, राइट, और ड्यू टू इरेगुलर अकाउंटिंग, एनी डिफॉर्म्ड अकाउंटिंग और एनी एरोनियस irregular issue of checks, then there is loss to the government. So this type of thing will be reported to whom? 4 options are there: the Controller and Auditor General of India, the Controller General of Accounts, the Secretary Expenditure Ministry of Finance, then Financial Advisor of the Ministry or Department concerned. तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन 2 है, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. तो आपको याद रखना है, इफ द गवर्नमेंट फेसिंग एनी लॉस ड्यू टू इरेगुलर इशू ऑफ चेक्स और एरोनियस इशू ऑफ चेक्स और इरेगुलर अकाउंटिंग, ओके, ऑफ रिसिप्ट्स, सो ये किसको रिपोर्ट किया जाएगा? द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल फाइनेंशियल रूल का. चलो क्वेश्चन नंबर 52 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवांस पेमेंट टू सप्लायर इज नॉट करेक्ट व्हेयर इट मे बिकम नेसेसरी टू मेक एडवांस पेमेंट्स? 4 ऑप्शंस गिवन. ऑप्शन 1, एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू to private firms. Second option given, advance payment should not exceed 40% of the contract value to a state or central government agency. Third option, in case of maintenance contract, the amount should not exceed the amount payable for 6 months under the contract. Then financial advisors of the ministry or department may relax the percentage laid down for advance payment for प्राइवेट फार्म्स. आप देख लीजिए रूल 172 GFR रूल 172 आप देख लीजिए. जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 रूल 172, इट इज रिलेटेड टू द एडवांस पेमेंट टू सप्लायर, राइट. सो इसमें क्लियरली मेंशन है कि फर्स्ट वन, एडवांस पेमेंट, यदि हम प्राइवेट फार्म से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा तो एडवांस पेमेंट 30, जितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा उसका 30% उसको एडवांस पेमेंट के आकार में दिया जाएगा. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. जो इज नॉट करेक्ट पूछा है, इज नॉट करेक्ट आपको डिटेल, ये करेक्ट है.
आपको बता देता हूं, इफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट contract with any private firm, then 30% of the estimated value should be given as advance payment. First one, correct one. यदि if the concerned government department giving contract to a state or central government agency, यदि contract state और central government agency को दिया जाएगा, तो अब जो contract value होगा उसका 40% एडवांस पेमेंट दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है अलग इंडिविजुअली। तो प्राइवेट फार्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, एडवांस पेमेंट 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा। तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू का 40% एडवांस दिया जाएगा। दोनों करेक्ट है। इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर 6 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस, ये भी करेक्ट है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में तो जो एडवांस पेमेंट होगा, जैसे जितना हम 6 months में पेमेंट करेंगे उतना ही एडवांस पेमेंट होगा। इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर 6 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। ओके, कोई हेवी मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होगा तो उसका मेंटेनेंस होगा ना, तो इसके लिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। तो उसमें जो एडवांस होगा, जितना हम बेसिकली 6 months में पेमेंट करेंगे, नॉट एक्सीड 6 months, जितना 6 months में उनको पेमेंट करेंगे उतना ही उनको एडवांस दिया जाएगा। बेसिकली जो एजेंसी जो जिसको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो ये द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ये 30%, 40%, और यदि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो एडवांस पेमेंट कितना होगा, तो नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर 6 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन, फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट may relax the percentage laid down for advance payment for private firms। क्योंकि प्राइवेट फार्म को जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 30% एडवांस पेमेंट होगा। क्या उसको रिलैक्स किया जा सकता है फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा? ये गलत है, कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो अभी आपको आंसर मिल गया। तो नॉट करेक्ट मीन्स ऑप्शन 4, आंसर ऑप्शन 4 है। राइट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन 4 ही रॉन्ग है। अदर तीनों जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 53, द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स and to frame or revise rules, manuals relating thereto. The authority responsible for prescribing the form of accounts of the union and states. Okay, जो यूनियन एंड स्टेट्स का जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स होगा वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसको उसका फ्रेमिंग, उसका रिवीजन, जो रूल्स, उसका मैनुअल्स। ओके, तो व्हिच अथॉरिटी basically is responsible for all these things? तो इसमें 4 options given: the Controller General of Accounts, Comptroller and Auditor General of India, Comptroller and Auditor General on the advice of the CGA, CGA on the advice of the Comptroller and Auditor General। तो उसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीजीए का, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसका फुल फॉर्म समझ में आ रहा है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। किसका एडवाइस लेगा वो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी फ्रेमिंग होगा अकाउंट्स के ऊपर यूनियन एंड स्टेट्स का, और उसका जो फ्रेमिंग होगा, रिवीजन होगा, रूल्स होगा, मैनुअल्स होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मगर वो एडवाइस किसका लेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जीएफआर, इट इज गिवन हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द टर्म गुड्स। जो ऑप्शंस दिया गया है एबीसीडी, लाइव स्टॉक, सॉफ्टवेयर, बुक्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें गुड्स जो ये दिया गया है 4 ऑप्शंस, क्या वो गुड्स में इंक्लूड है? ये देखेंगे। आप देख लीजिए, गुड्स का डेफिनेशन जो है जीएफआर रूल का 143 में दिया गया है। समझ में आ गया? जीएफआर रूल 143 में गुड्स का डेफिनेशन दिया गया है। इसमें
जो डेफिनेशन में ये इंक्लूड है, लाइव स्टॉक है, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, मगर बुक्स इंक्लूड नहीं है। ओके, बुक्स इंक्लूड नहीं है। बुक्स को गुड्स नहीं माना जाएगा। बुक्स, पब्लिकेशंस, ये सब नहीं। बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स एटसेट्रा फॉर ए लाइब्रेरी, आप याद रखना ये सब इंक्लूड नहीं होगा। बुक्स नहीं होगा। ओके, लाइब्रेरी में जो है पीरियोडिकल्स वो नहीं होगा, ये भी गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आपका सपोज कुछ पब्लिकेशन से, कुछ पब्लिकेशन से, ये सब लाइब्रेरी रिलेटेड है, पब्लिकेशन है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा गुड्स में। समझ में आ गया? तो रूल 143 में क्लियरली मेंशन है, गुड्स को डिफाइन किया गया है, जनरल फाइनेंशियल रूल। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड। तो आंसर जो है ए, बी एंड डी, राइट? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 55, परचेज ऑफ गुड्स विदाउट इनवाइटिंग कोटेशंस। जो विदाउट इनवाइटिंग कोटेशंस it is given or bids may be made. Purchase of goods without inviting quotations इसको अंडरलाइन कर दिया, or bids may be made on the basis of a certificate to be recorded by the competent authority on each occasion up to the value of, आप देख लीजिए GFR रूल 154, ये विदाउट कोटेशन है। ठीक है, विदाउट कोटेशन यदि आप कोई गुड्स परचेज करना चाहते हो जिसके ऊपर एक सर्टिफिकेट भी मेंशन होगा, जो गुड्स का स्पेसिफिकेशन है कि क्वालिटी है, कि उसको रीजनेबल रेट में खरीदा गया, ये सब मेंशन होगा, उसमें कोटेशंस का जरूरत नहीं है। ओनली सर्टिफिकेट में ये मेंशन होगा कि ये जो गुड्स को खरीदा गया उसका स्पेसिफिकेशन अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है और रीजनेबल प्राइस में उसको खरीदा गया और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बेसिकली डिपार्टमेंट और ऑफिस इसको खरीदा गया। ठीक है, तो विदाउट कोटेशन कितना वैल्यू तक हम खरीद सकते हैं? इट इज अप टू द वैल्यू ऑफ ₹25,000। ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन। मगर ये केवीएस आंसर में गलत था, 50,000 था, पहले 50,000 था, मगर अभी रिवाइज होकर 25,000 हुआ है। तो विदाउट कोटेशन, ओके, कोई भी गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, वो अप टू 25,000 इट मीन्स वर्थ ऑफ गुड्स कैन बी परचेज्ड अप टू ₹25,000। क्लियर? और ये रूल 154 में है। और इसमें बता देता हूं, जो रूल 155 उसमें ऐड कर देता हूं, ये जो है लोकल परचेज कमेटी। लोकल परचेज कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, वो जाकर मार्केट सर्वे करेंगे और उसका जो लोकल एलपीसी होगा, लोकल परचेज कमेटी, यहां पर कोटेशन का जरूरत है। ओके, और ये है मोर देन 25,000, मोर देन 25,000 अप टू 2.5 लाख। कितना होगा? मोर देन 25,000, ओके, अप टू 2.5 लाख। ये एलपीसी लोकल परचेज कमेटी वो मार्केट सर्वे करेंगे और वहां पर वो कोटेशंस लाएंगे और वो कोटेशंस को कंपेयर किया जाएगा। जिसका स्पेसिफिकेशन अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा, जिसका रीजनेबल प्राइस होगा, ठीक है, तो उसको अल्टीमेटली उससे अल्टीमेटली खरीदा जाएगा। ठीक है, और उसमें भी सर्टिफिकेट भी एक मेंशन होगा, सर्टिफिकेट भी रिकॉर्डेड होगा। यहां पर ऑप्शन 2 आंसर है। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 56 को चलेंगे। राइट, which of the following statements is or are correct? 2 statements given, हम correct statement को डिटेक्ट करेंगे। efficiency, economy and transparency are the fundamental principles of public buying। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, बेसिकली आप देख लीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर क्लियरली रूल 144 जीएफआर रूल 144 देख लीजिए, वहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। सो इट मींस गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। ओके, जब भी गवर्नमेंट ऑफिस, एनी सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट, व्हेन दे वांट टू प्रोक्योर द गुड्स, तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो रूल 144 एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग for all procurement including procurement of works, including procurement of works। तो वहां पर efficiency, economy and transparency are the fundamental principles of public buying, ये करेक्ट है। efficiency, efficiently it means आपको खरीदना है, प्रोक्योर करना है, और जो भी वर्क्स,
ओके कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी एफिशिएंटली, जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट देना है दिया जाएगा। तो एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंटली यूटिलाइज द मॉनेटरी रिसोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमी होगा, रीजनेबल प्राइस में खरीदा जाएगा, ज्यादा प्राइस में नहीं। और ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी मेंटेन किया जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी जो है, कोई गवर्नमेंट का लॉस नहीं होगा, तो रीजनेबल प्राइस में खरीदा जाएगा और ऑनेस्टली उसको खरीदा जाएगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट वन, द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स विल बी मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम पोर्टल। थोड़ा जेम पोर्टल के ऊपर आप देख लीजिए, जीएफआर रूल 149, रूल 149 में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी गुड्स अवेलेबल है जेम में, तो मैंडेटोरीली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शुड परचेज द गुड्स अवेलेबल ऑन जेम। जेम में अवेलेबल है मींस ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट है वो उनको मैंडेटोरी है वो जेम से खरीदेंगे। हाँ, जेम में नहीं है तो वो जाकर लिमिटेड टेंडर और कोटेशन और एडवर्टाइज टेंडर को बजाएंगे। चलो अलग है, मगर यहां पर आपको याद रखना है कि जो रूल 149 जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल में अभी डिक्लेयर किया गया है कि जेम पोर्टल में जो भी गुड्स है और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है उनके लिए मैंडेटरी है वो जेम पोर्टल से खरीदेंगे। ये दोनों करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो रूल के हिसाब से बताया। चलो क्वेश्चन नंबर 57 को चलेंगे। In the form of DAS, insurance, surety bond, e-bank guarantee, banker's check, fixed deposit receipt, select the correct answer using the code given below। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि इन टर्म्स, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57, इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जीएफआर 2017, ये बीड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो बीड सिक्योरिटी का रूल मैं फर्स्ट बता देता हूं आपको। रूल 170 आप देख लीजिए, फंडामेंटल रूल 170 में बीड सिक्योरिटी के ऊपर है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ जीएफआर 2017, बीड सिक्योरिटी को हम ईएमडी बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। यहां पर अर्नेस्ट मनी दिया है, ईएमडी भी बोलते हैं, बीड सिक्योरिटी का अल्टरनेट नेम है। मे बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ, कैसे बीड सिक्योरिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा? तो बेसिकली जो बीड सिक्योरिटी होता है वो बेसिकली कितना परसेंटेज होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बीड सिक्योरिटी होगा बेसिकली क्यों लिया जाता है, क्लियर? तो बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड क्या है, ये डिटेल्स आपको जानना चाहिए। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है, आपको याद रखना है कि जो अमाउंट ऑफ बीड सिक्योरिटी है शुड ऑर्डिनरली रेंज बिटवीन 2% to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स। फर्स्ट जो बीड सिक्योरिटी का वैल्यू होगा 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, ठीक है। बीड सिक्योरिटी लिया जाएगा क्योंकि, अच्छा बीड सिक्योरिटी क्यों लिया जाएगा? क्योंकि उसमें सपोज कोई बीडर वो इसमें कुछ अल्टर, जो बीड डॉक्यूमेंट दिया है उसमें कुछ चेंज कर देगा, उसको कुछ मॉडिफाई कर देगा, तो उसका बीड सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि उसको इसीलिए बीड सिक्योरिटी वहां पर दिया जाता है, उसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी कहा जाता है। वो बेसिकली रेंज होता है 2 to 5%, ठीक है। और जो बीड सिक्योरिटी नॉर्मली जो वैलिड होता है वो 45 डेज होता है। वैलिड कितना होता है? 45 डेज होता है, ठीक है। ये भी आपको एक 1 मार्क क्वेश्चन मिल सकता है। बेसिकली 45 डेज होगा बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। ये जो 45 डेज हम कैसे काउंट करेंगे? जो बीड वैलिडिटी पीरियड है, बियॉन्ड बीड वैलिडिटी पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप 45 डेज काउंट कर लेंगे तो बीड सिक्योरिटी का वैलिड पीरियड होगा, ठीक है। तो इसको, अच्छा बीड सिक्योरिटी को कैसे दिया जाएगा? जो अनसक्सेसफुल बीडर से, जैसे आई मीन सभी बीडिंग को जो बीडिंग डॉक्यूमेंट्स दिया है उसको कंपेयर किया जाएगा, तो अल्टीमेटली एक ही बीडर को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो अदर जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनको उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो वो कैसे रिटर्न कर दिया जाएगा ना? ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एज सुन एज पॉसिबल होगा, एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी। जब आपका आई मीन फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा एक बीडर को, तो एज सुन एज पॉसिबल जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी को उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये लाटेस्ट में आ सकता है, और एक लाटेस्ट ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। तो उसमें दो तीन चीज आपको ये सभी है, बीड सिक्योरिटी ऐसे दिया जा सकता है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड, ई बैंक गारंटी, बैंकर चेक, फिक्स डिपॉजिट, 4 ऑप्शंस करेक्ट है, आंसर इज 4। तो इसमें दो तीन चीज याद रखना है। रूल 170 बीड सिक्योरिटी और ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के ऊपर है। जो बीड सिक्योरिटी का परसेंटेज होगा 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स। जब भी बीडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, जब बीडर्स उनका बीडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, उसी समय उनको बीड सिक्योरिटी देना पड़ेगा। ठीक है। तो क्यों ये देते हैं ना, कभी कभी बीडर्स क्या है, उनका जो बीड को वो विथड्रॉ कर सकते हैं और बीड में कुछ चेंज कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो ये करेंगे। तो उनका बीड को वो विथड्रॉ करेंगे कि कुछ बीड में कुछ वो मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो उस केस में उनका बीड सिक्योरिटी क्या होगा, फॉरफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो छेड़खानी होता है ना, ये वंस बीडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए उसके बाद वो छेड़खानी करेंगे तो ये बीड सिक्योरिटी को क्या कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा। और बेसिकली जो बीड वैलिडिटी पीरियड होता है उसके बाद जो बीड सिक्योरिटी जो वैलिड होता है 45 डेज होता है। और जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनको as soon as possible उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा, और लेटेस्ट में ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो बीड सिक्योरिटी इसी फॉर्म में दिया जाएगा। ओके, जो बीडर्स जो बीड सिक्योरिटी जमा करेंगे इसमें इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड, ई बैंक गारंटी, बैंकर चेक, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, ये सभी करेक्ट है। ऑप्शन इज आंसर। ओके, ऑप्शन इज 4 इज करेक्ट वन, राइट। चलो नेक्स्ट वन, in case of emergency treatment, head of office of joint secretary level can allow reimbursement of expenses up to 4 options given: rupees 1 lakh, rupees 2 lakhs, rupees 1,50,000, no such limit has been prescribed। ये आंसर है rupees 2 lakhs। मैं थोड़ा बता देता हूं। यदि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सैंक्शन करेंगे। यदि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में है तो जो ऑफिसर होगा उसका बेसिकली जो उसका जो पोस्ट होगा वो बेसिकली जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो उसको अप्रूव करेंगे जो एक्सपेंसेस होगा अप टू रुपीज 2 लाख। समझ में आ गया? तो हेड ऑफ बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको सैंक्शन करते हैं, मगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में है तो ऑफिस का जो हेड होगा उनका जो डेजिग्नेशन होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो वो जो रिइंबर्समेंट होगा वो अप टू रुपीज 2 लाख को वो अप्रूव कर सकते हैं, और मोर देन 2 लाख होगा तो फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट किया जाएगा। अप टू 2 लाख तो समझ में आ गया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में है तो जो ऑफिस का जो हेड है जो उनका डेजिग्नेशन होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट से कम नहीं होगा। ठीक है, तो वो रुपीज 2 लाख तक वो सैंक्शन कर सकते हैं। और ग्रेटर देन 2 लाख, यहाँ पर अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दे देता हूँ। ग्रेटर देन 2 लाख को रिइंबर्समेंट सपोज होगा, ग्रेटर देन 2 लाख उसको अप्रूव किया जाएगा करने के लिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। और कभी कभी उसको रिलैक्सेशन एक्चुअली कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। इसके ऊपर जो रिलैक्सेशन है बेसिकली आपको याद रखना है, रिलैक्सेशन केस में आपको मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो कर सकता है, कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन दे सकता है। समझ में आ गया? 2-3 इंफॉर्मेशन में दिया। ये सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 का ओके रिलेटेड है। तो ऑप्शन इज 2 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 59 को चलेंगे। अगेन CS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 apply to which of the following categories of officials? तो रेलवे एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन टू अदर ऑफिसेस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए CSMA रूल्स 1944 एप्लीकेबल है। ऑफिसर्स ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व उनके लिए भी एप्लीकेबल है। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर्सोनल इनके लिए भी एप्लीकेबल है। नॉन ऑफिशियल्स सेंट ऑन डेपुटेशन वर्क उनके लिए इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं बता देता हूं और कुछ रूल। जैसे कोई रेलवे एम्प्लॉई वो अभी डेपुटेशन में गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो CSMA रूल्स कि सपोज कोई रेलवे एम्प्लॉई और कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गया डेपुटेशन में तो उनके लिए CSMA रूल्स लागू होगा। ऑफिसर्स ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व उनके लिए एप्लीकेबल होगा। यहां पर जो ओनली डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर्सनल के लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखना है।
जो डिफेंस डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए, डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, मगर डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर्सनल के लिए एप्लीकेबल होगा। और जो प्रोबेशनर्स है उनके लिए एप्लीकेबल होगा, और जो अप्रेंटाइज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनका जॉब रेगुलर होगा, ओके, परमानेंटली जो अप्रेंटाइज है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। और जो रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन को री एम्प्लॉयमेंट मिला, उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये सब चीज को आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया, मैं करेक्ट दे दिया, तो ऑप्शन ए बी सी, ओके, करेक्ट वन, ऑप्शन इज वन। तो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन वन इज करेक्ट वन, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 60, again another related to CSMA rules 1944, which of the following statements are correct? क्या दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई shall consult an authorized medical attendant only who is nearest to his residence, only to his, नो ये गलत है, क्योंकि हाँ, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट जो नियर टू हिज रेसिडेंस कंसल्ट कर सकता है, और एनी अदर सपोज ए में विद इन द एरिया, ऐसा नहीं है कि ओनली नियरेस्ट है उनको ओनली दिया है ना, तो ये गलत है। नियरेस्ट है तो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट तो नियरेस्ट में कंसल्ट कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके। सपोज नियरेस्ट में आप नहीं किया तो जो आपका एरिया है उसमें और एम्पैनल्ड ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है, आप किसके साथ कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। ओनली दिया है तो ये गलत है, तो आर करेक्ट दिया है ना। तो at no time a government servant can have more than 2 authorized medical attendants, ये भी करेक्ट है। at no time a government servant कह रहा more than 2 नहीं होगा authorized medical attendant। तो कैसे मैं बता देता हूं। एक तो आपका authorized medical attendant है, कभी कभी ऐसा कुछ सर्कमस्टांस आता है कि आप और एक authorized medical attendant और AMA के साथ कंसल्ट करना चाहते हो, ऐसा कुछ सर्कमस्टांस आता है तो आप कर सकते हो। एक तो authorized medical attendant है ऑलरेडी, मगर suppose any circumstance actually occur, and at that time you need it means you want to consult with another empaneled AMA, okay, within your area, then आप कर सकते हो, मगर आपका जो authorized medical attendant 2 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये करेक्ट है। A government official is not entitled for taking treatment from private medical practitioners appointed as AMAs outside his normal duty station, ये भी करेक्ट है, ओके। गवर्नमेंट ऑफिशियल इज नॉट एंटाइटल्ड, आपको प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ आप कंसल्ट नहीं कर सकते, एम इज आउटसाइड इज नॉर्मल ड्यूटी स्टेशन, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपॉइंटेड एज एएमएस आउटसाइड इज नॉर्मल ड्यूटी स्टेशन, नॉर्मल ड्यूटी स्टेशन में होगा। तो थोड़ा प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर बता देता हूं। विद इन 5 किलोमीटर रेडियस में सपोज एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक एलोपैथिक और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, तो विद इन 5 किलोमीटर रेडियस में कोई गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट वो डॉक्टर नहीं है, तो वहां पर जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट होगा वो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, समझ में आ रहा है। मगर 5 किलोमीटर रेडियस में ऐसा कोई सपोज ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट बेसिकली बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं मिला, तो वहां पर प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। मगर यहां पर क्या है, इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपॉइंटेड एज एएमए, आउटसाइड इज नॉर्मल ड्यूटी स्टेशन, ओके। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, आपका आउटसाइड नॉर्मल ड्यूटी स्टेशन से आप कोई प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ आप कंसल्ट नहीं कर सकते, ओके। तो ये तो भी करेक्ट है। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमिटी कैन ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट डेंटिस्ट इन ईट्स कैटेगरी ऑफ एएमएस, ये गलत है, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप कभी भी प्राइवेट डेंटिस्ट का हेल्प नहीं ले, कंसल्ट नहीं कर सकते, प्राइवेट डेंटिस्ट ऑनलाइन कर, प्राइवेट डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपको 2 ऑप्शन एक्चुअली आपको मिल गया, मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 करेक्ट वन और करेक्ट भी है, बी एंड सी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक 2 से ज्यादा एएमए नहीं होंगे, थोड़ा मैं आपको हिंट्स दिया, और आपका आउटसाइड नॉर्मल स्टेशन में ऐसा कोई प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपॉइंटेड एज एएमए, तो उनके साथ आप कंसल्ट नहीं कर सकते आउटसाइड नॉर्मल ड्यूटी स्टेशन में। अच्छा, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को कब अपॉइंटमेंट किया जाता है मैं थोड़ा बताया आपको। यदि आपको
गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं मिले, जो एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डॉक्टर्स नहीं मिले 5 किलोमीटर रेडियस में, तब प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। मगर यहाँ पर आउटसाइड नॉर्मल स्टेशन में आप कोई जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके साथ आप कंसल्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 3 करेक्ट वन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ एडवांस के ऊपर है। अगेन CSMA रूल्स आर करेक्ट देखेंगे। यहाँ पर दिया है कि एडवांस अप टू 90% ऑफ द अप्रूव्ड CGHS पैकेज रेट्स कैन बी ड्रॉन ओनली इन द केस ऑफ मेजर इलनेस। ओनली इन द केस ऑफ मेजर, ये गलत है। हाँ ठीक है, मेजर इलनेस में दिया जाएगा। तो आपको बता देता हूं, मेजर इलनेस में तो आप 90% जो भी फिजिशियन, जैसे जो भी आपका खर्च होगा, जो बेसिकली जो ट्रीटेड फिजिशियन है वो एस्टिमेट करेगा, वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और सर्टिफिकेट में मेंशन करेगा कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड एंटिसिपेटेड कॉस्ट, उसका 90% मिलेगा। मगर ओनली नहीं, आपको 3 चीज बताता हूं, मेजर इलनेस, और यदि आपका इंडोर ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ माइनर और मेजर, चाहे माइनर हो कि मेजर हो, आपका हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको हम इंडोर ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो इस केस में क्या है, जो आपका ट्रीटेड फिजिशियन है वो एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड एंटिसिपेटेड कॉस्ट। तो ऑफिस 90% एडवांस देगा, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, यदि आप आउटडोर, जो बेसिकली पेशेंट है, आउटडोर में आप दिखा रहे हो, ठीक है, तो आउटडोर पेशेंट के लिए क्या है, आपका एक्सपेंडिचर यदि मोर देन 10,000 होगा, आपका एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000, जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन से, चाहे आप कुछ टेस्ट फेस्ट किया तो और मेडिसिन खरीदा, ये सब मोर देन 10,000 होने से आपको 90% एडवांस मिलेगा। तो 3 केस है, ओके। मगर यहां पर दिया है जे एडवांस अप टू 90% ऑफ द अप्रूव्ड CGS पैकेज रेट्स कैन बी ड्रॉन ओनली इन द केस ऑफ मेजर इलनेस। ये तो गलत है, ओनली लिख दिया ना, ओनली तो गलत है, क्योंकि मैं अभी बताया ऑप्शन दिया, मेजर इलनेस में 90% एडवांस मिलेगा। और जब सेकेंड वन भी करेक्ट वन, ये करेक्ट वन है, ओके। इंडोर ट्रीटमेंट में चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ माइनर और मेजर, तो मैं अभी बताया कि था ये करेक्ट है, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको ट्रीटेड फिजिशियन देगा और मेंशन करेगा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड एंटिसिपेटेड कॉस्ट, उसका 90% मिलेगा। तो दोनों तो बी या सी करेक्ट है, ठीक है। और एक चीज बताया, जब आउटडोर, ये याद रखिए, फिर एडवांस का बात आता है, जब आपका आउटडोर ट्रीटमेंट चल रहा है और जो OPD बोलते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओके, OPD में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपका एक्सपेंडिचर जो होगा मोर देन 10,000 होगा, इस केस में भी 90% एडवांस मिलेगा। और यदि जो हैंडीकैप्ड डिसेबल है, वो जब एप्लियंसेस खरीदेंगे कि एप्लियंसेस को रिप्लेस करेंगे, वहां पर भी 90% एडवांस मिलेगा। तो यहां पर जो आंसर एक्चुअली मेरे हिसाब से बी एंड सी करेक्ट है, मगर केवी का आंसर गलत दिया है, केवी का आंसर ए को भी करेक्ट किया है, मगर मेरे हिसाब से ए करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ओनली दे दिया इन केस ऑफ मेजर इलनेस। ओनली एडवांस मिलेगा क्या CGHS पैकेज रेट में, 90% एडवांस मिलेगा। तो आपको तो बहुत तरीके से बताया ना कैसे एडवांस मिलेगा। तो मेरा हिसाब से मैं वो जो 5th ऑप्शन है मैं जोड़ दिया, वो बताए करेक्ट आंसर पूछा है, करेक्ट बी एंड सी है, राइट, ए करेक्ट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 62 को चलेंगे। यहां पर मैसेज ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, इट इज नॉट एडमिसिबल अंडर CSMA रूल्स 1944, however claims in respect of such treatment may be admitted subject to certain conditions with the special sanction। एक्चुअली जो मैसेज ट्रीटमेंट है वो CSMA रूल्स में एडमिसिबल नहीं है। यदि वो क्लेम को एडमिट किया जाएगा तब किसका सैंक्शन होना चाहिए। मैसेज ट्रीटमेंट बेसिकली इट इज नॉट इंक्लूडेड इन CSMA रूल्स 1944, और समटाइम्स इफ इट कैन बी एडमिटेड देन एक्चुअली हु गिव द सैंक्शन। तो यहां पर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका सैंक्शन चाहिए। ऐसे नॉर्मली मैसेज ट्रीटमेंट के लिए वो इंक्लूड नहीं है सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 में, उसके लिए रीइंबर्समेंट नहीं होगा, मगर उसको एडमिट किया जाएगा कि रीइंबर्समेंट के लिए आपको रीइंबर्समेंट देने के लिए एडमिट किया जाएगा। तो किसका सैंक्शन चाहिए, स्पेशल सैंक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर इज 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 63 को चलेंगे। इन CSMA रूल्स 1944, from the date of commencement of treatment in respect of one single and continuous spell of illness in respect of a particular disease,
फास्ट 4 कंसल्टेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ, तो जो फास्ट 4 कंसल्टेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन ए 10 डेज। आपको याद रखना है जो 4 कंसल्टेशन होगा वो 10 डेज के अंदर होगा, तो सिंगल एंड कंटिन्यूअस स्पेल ऑफ इलनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। तो जो आपका कंसल्टिंग डॉक्टर है, जो कंसल्टिंग रूम है डॉक्टर का, जो आपका जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है, उनका जो कंसल्टिंग रूम है बेसिकली हॉस्पिटल में, कि उनका कंसल्टिंग रूम उनका रेसिडेंस में है कि उनका हॉस्पिटल में है, आप 10 डेज के अंदर 4 टाइम्स कंसल्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आंसर इज 3, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 64 को चलेंगे। Which of the following statements are not correct देखेंगे regarding CSMA rules 1944, again Central Services 19 Medical Attendance Rules 1944। These rules apply to a probationer, मैं अभी बताया था प्रोबेशनर के लिए CSMA rules 1944 एप्लीकेबल है। डिफेंस सर्विसेज पर्सोनेल इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मगर जो मैं अभी बताया था आपको कि डिफेंस अकाउंट सर्विसेज पर्सोनेल के लिए एप्लीकेबल है। अकाउंट यहां पर जोड़ दो तो एप्लीकेबल है, मगर ओनली डिफेंस सर्विसेज पर्सोनेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डिफेंस जो अकाउंट्स, जो डिफेंस का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो कमर्शियल क्लर्क जो काम करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, मगर डिफेंस सर्विसेज जो पर्सोनेल, जो बेसिकली हमारा जो बेसिकली सोल्जर से कि मेजर से कि जो हायर ऑफिसर से, उनके लिए नहीं होगा। जो बेसिकली ऑफिशियल ये में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। दीज रूल्स अप्लाई टू दोज इन रेलवे सर्विसेज, नो रेलवे सर्विसेज में एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, यदि रेलवे एम्प्लॉइज दे गो फॉर डेपुटेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि कोई रेलवे एम्प्लॉइज वो डेपुटेशन में जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये रूल एप्लीकेबल होगा। कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉइज वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है डेपुटेशन में, सीएसएमए रूल्स एप्लीकेबल होगा। These rules apply to serving central government employees residing outside CGHS covered area। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हम मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं, और जो CGHS हॉस्पिटल है उसका पैकेज रेट में हमको ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसका ये ऑल्टरनेट है CSMA रूल्स 1944। यदि आपको CSMA रूल्स 1944 आप अवेल करते हो तो आपको CGHS फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जहां पर CGHS फैसिलिटी नहीं मिल रहा है जो एम्प्लॉइज को, तो आउटसाइड में जो है CGHS, जहां पर CGHS फैसिलिटी है तो वो अवेल करेंगे, मगर CGHS फैसिलिटी जिस एरिया में एक्चुअली कवर नहीं कर रहा है तो आउटसाइड में वो सब CSMA रूल्स 1944 के हिसाब से वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे और उनका रिइंबर्समेंट होगा, मेडिकल क्लेम। तो ये एक्चुअली करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट वन, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्लियर दे दिया, ये ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, 64 क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन 4 करेक्ट है, राइट। ओह, यहां पर क्या दिया है सर, यहां पर दे दिया नॉट करेक्ट दिया, आर नॉट करेक्ट, आर नॉट करेक्ट, सॉरी, आर नॉट करेक्ट मीन्स ये दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल, टिक लगा दिया, एप्लीकेबल है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो क्रॉस लगाया। तो सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड। इट मीन सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों गलत है। समझ में आ गया? तो जो आउटसाइड CGHS कवर्ड एरिया है वहां पर CSMA रूल्स 1944 अवेल किया जाता है, प्रोबेशनर के लिए एप्लीकेबल है। डिफेंस डिपार्टमेंट का जो अकाउंट्स में काम करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, मगर ओनली दे दिया डिफेंस सर्विसेज एप्लीकेबल नहीं है। और रेलवे सर्विसेज जो एम्प्लॉइज रेलवे डिपार्टमेंट में काम करे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मगर वो डेपुटेशन में जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वहां पर एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? तो मैं अच्छे से क्लैरिफाई किया। तो आर नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है, ऑप्शन 2 एक्चुअली करेक्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 65 को चलेंगे। अगेन देखेंगे इज और आर करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओन मेरिट कंसेप्ट मीन सिलेक्शन ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइड टू जनरल कैंडिडेट्स। यदि मेरिट ओन मेरिट जो होता है उसमें सपोज सिलेक्शन होता है, ओन मेरिट कंसेप्ट बेसिकली SC ST कैंडिडेट्स को आप ले जाओ, उनका जैसे जनरल जो मेरिट में वो आ जाते हैं, तो जनरल कैंडिडेट्स को जैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा उनको वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा।
यदि वो मेरिट में आ जाते हैं। भाई ये ओन मेरिट कंसेप्ट मीन्स सिलेक्शन ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइड टू जनरल कैंडिडेट्स, ये करेक्ट है। और नेक्स्ट वन, कैंडिडेट्स अपॉइंटेड ऑन देयर ओन मेरिट, यदि ओन मेरिट में उनका जो SC ST कैंडिडेट्स है उनका सिलेक्शन होता है तो उनका वो बेसिकली विल रिटेन देयर स्टेटस ऑफ SC और ST इन फ्यूचर प्रमोशन, ये भी करेक्ट है। तो आपको याद रखना है यदि SC ST कैंडिडेट्स उनका सिलेक्शन ओन मेरिट में होता है तो सेम जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए जो अप्लीकेबल होता है उनके लिए वही स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होगा। और चाहे वो ओन मेरिट में उनका सिलेक्शन हुआ मगर SC ST शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के हिसाब से उनका फ्यूचर प्रमोशन होगा। ये दोनों करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट वन, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन, राइट। चलो 66 को चलेंगे। अगेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट देखेंगे। द रिजर्वेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्रमोशन इज 4% ऑफ द टोटल वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन, ये करेक्ट है। जो रिजर्वेशन होता है PWDs पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनका जो टोटल वैकेंसीज का 4% एक्चुअली फील्ड बाय प्रमोशन, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन विद डिसेबिलिटी इन प्रमोशन इज 4% ऑफ द टोटल वैकेंसीज फील्ड बाय प्रमोशन। यदि टोटल वैकेंसीज को फील्ड किया जाएगा प्रमोशन में तो उसमें 4% रिजर्वेशन रहेगा। किसके लिए? PWDs के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, करेक्ट है। द रिजर्वेशन फॉर PWDs फॉर प्रमोशन इज पोस्ट बेस्ड, ये गलत है। पोस्ट के हिसाब से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, ये करेक्ट नहीं है। तो जैसे बताया, जैसे प्रमोशन जो वैकेंट पोस्ट है उसको प्रमोशन में फिलअप किया जाएगा और उसमें 4% जो वैकेंट पोस्ट है वो रिजर्व रहेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी, मगर पोस्ट के हिसाब से उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा प्रमोशन के लिए, पोस्ट के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। तो ऑप्शन जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया है ना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67। अगेन यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट देखेंगे। अगेन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल, द एक्सटेंडेड जोन फॉर फिलिंग रिजर्व वैकेंसीज विल बी 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये करेक्ट है। रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल, द एक्सटेंडेड जोन, इसको याद रखिए, विल बी 5 times, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। द एक्सटेंडेड जोन फॉर फिलिंग रिजर्व वैकेंसीज विल बी 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज, करेक्ट है। द एक्सटेंडेड जोन विल बी द सेम 5 times इन केस ऑफ प्रमोशन बाय सिलेक्शन विद इन ग्रुप ए, ओनली ग्रुप ए केस में दिया है, ग्रुप ए जो दे दिया ये ओनली ग्रुप ए के लिए नहीं, विद इन ग्रुप ए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, विद इन ग्रुप ए में नहीं, ओनली ग्रुप ए एम्प्लॉइज के लिए नहीं। तो ओनली यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 67 है, अगेन ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। Where a person migrates from one state to another, he can claim to belong to SC ST OBC in relation to the state to which he migrates if his caste is notified with reference to that state। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, कि वो दिया है कि एक पर्सन का माइग्रेशन हो गया अनदर स्टेट को और वो क्लेम करेगा जैसे SC ST OBC in relation to the state to which he migrates if his caste is notified with reference to that state। तो वो स्टेट में उसका कास्ट को नोटिफिकेशन देना चाहिए कि वो इसमें इस वर्ग में आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये गलत है। देयर इज नो रिलीजियस बार फॉर बीइंग ट्रीटेड एज ST, कोई देयर इज नो रिलीजियस, ये करेक्ट है। देयर इज नो रिलीजियस बार फॉर बीइंग ट्रीटेड एज ST, कोई रिलीजियस बार नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन। मगर ऐसा नहीं है कि जैसे एक SC ST की OBC एक स्टेट में वो SC ST OBC कैटेगरी में आता है और द अदर स्टेट को चला गया, तो अदर स्टेट में फिर जो नोटिफिकेशन दिया गया है जो कास्ट के हिसाब से, उसी कास्ट के हिसाब से उसको गिनती किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट वन, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट वन। तो वही करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन 2 ओके इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 69 को चलेंगे। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट
बैकलॉग वैकेंसीज विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द लिमिट ऑफ 50% रिजर्वेशन। ये दिया है, कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है? जो बैकलॉग वैकेंसी, जो वैकेंसी पहले जो वैकेंसी है तो विल नॉट बी कंसिडर्ड, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा 50% रिजर्वेशन में, क्योंकि अभी जो रिजर्वेशन है आपको याद रखना है, जैसे ओबीसी के लिए 27% है नहीं कि, तो बेसिकली एससी के लिए इट इज 15% है और एसटी के लिए इट इज 7.5 है ना, ये है नहीं कि अराउंड 40, तो अराउंड 50% रिजर्वेशन हो जाता है ना कि, तो वो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट बैकलॉग वैकेंसीज विल नॉट बी कंसीडर्ड, जो बैकलॉग वैकेंसीज विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द लिमिट ऑफ 50% रिजर्वेशन। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16(4)(b), इसको याद रखना है। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4(b) करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट वन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 70, Question number 70. Consider the following statements regarding entitlement to leave up to employees whose appointment is treated as ad hoc for purely technical reasons. इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो ad hoc अपॉइंटमेंट है। क्या such employees shall be extended the benefit admissible to temporary employees under CCS लीव रूल्स 1972? ये करेक्ट होगा। जैसे जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 जो टेम्पररी एम्प्लॉइज के लिए है, क्या ये ad hoc एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल होगा? होगा, ये करेक्ट है, राइट। तो वही करेक्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट वन, क्या ये ad hoc एम्प्लॉइज में बी अलाउड EL, ओके, EL ऑन लीव एट द रेट ऑफ 2.5 days पर मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। आपको हम जानते हैं कि एवरी कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर में 5/2 नहीं कि 5/2 days EL मिलता है, तो 6 months में कितना? 15 days। जो नॉन वैकेंट पोस्ट है तो एवरी 6 months में 15 days EL मिलता है, तो एवरी कैलेंडर मंथ में कितना मिलता है? 5/2 days। तो 6 months में कितना हुआ? 5/2 into 6 15 days हुआ ना, तो एवरी कैलेंडर मंथ में इतना EL मिलता है, तो ad hoc एम्प्लॉइज को भी मिलेगा, तो ये करेक्ट है। और दिया है ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, यदि ad hoc एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया जाता है, सच ad hoc एम्प्लॉइज शैल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एनकैशमेंट। जैसे कोई ad hoc एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसका जो खाते में, जो सर्विस बुक में उसका जो EL है, क्या वो EL को एनकैश किया जा सकता है? ये एनकैश नहीं होगा, EL को एनकैश नहीं होगा। जैसे परमानेंट एम्प्लॉइज में क्या है, जैसे आपका जितना EL है, सपोज आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है कि आपको आप रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसमें जितना EL है उसका 50% एनकैश होगा, उसका 50% एनकैश होगा। मगर सुपर एनुएशन, जब आपका पूरा रिटायरमेंट हो जाता है, सुपर एनुएशन रिटायरमेंट, तो कितना? मैक्सिमम 300 EL को एनकैश किया जाएगा। तो याद रखना है, सुपर एनुएशन में मैक्सिमम 300 EL को एनकैश किया जाएगा। आप रेजिग्नेशन दे देते हो कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया जॉब में, तो जितना EL है उसका 50%, जैसे आप रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन देकर चला गया, तो वहां पर जो एनकैश होगा EL का 50% EL एनकैश होगा रेजिग्नेशन केस में। मगर ये ad hoc पोस्ट था, ad hoc पोस्ट में तो एज यूजुअल जैसे हमको एवरी कैलेंडर मंथ में 5/2 days EL मिलता है, मिलेगा। और जैसे टेम्पररी एम्प्लॉइज को CCS लीव रूल्स 1972 कवर करता है, उनको कवर करेगा। मगर ad hoc एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो उनका जो EL है, तो उनका जो EL जो सर्विस बुक में है उसको एनकैश नहीं किया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, तो फास्ट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वही बचा, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन 1 ओके, करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 71, ये भी एक लीव के ऊपर है। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, ये भी करेक्ट है, ये एक्चुअली करेक्ट है। एक लीव है कि एक्चुअली ये राइट नहीं है एम्प्लॉय का। ओके, द एम्प्लॉय इज हैविंग नो राइट टू क्लेम द लीव, ये करेक्ट है। लीव शुड नॉट बी ऑर्डिनरीली बी डिनाइड ड्यूरिंग द लास्ट 10 years ऑफ सर्विस। आपका लास्ट 10 years सर्विस में आपको लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मना नहीं करेगा लीव देने के लिए। ये लास्ट 10 years इसको, ये इसके ऊपर एक MCQ आ सकता है, ये करेक्ट है। इट इज डिजायरेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विस, इसको अंडरलाइन कर दिया, दैट गवर्नमेंट सर्वेंट्स टेक अर्न लीव
at suitable intervals। तो ये भी करेक्ट है। जैसे ये दिया है CCS लीव रूल्स 1972 में, सपोज आपका जो इंटरेस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ कुछ इंटरवल में EL देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्सेशन उनको मिलेगा, EL लेकर वो रिलैक्स लेंगे और उनमें थोड़ा उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। लीव एक राइट नहीं है, और लास्ट 10 ईयर सर्विस में कोई भी एम्प्लॉइज को लीव मना नहीं किया जाएगा, और सम इंटरवल्स में बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और EL दिया जाएगा, क्योंकि उनको EL चाहिए कि थोड़ा रिलैक्सेशन वो हो जाएंगे और उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 72 को चलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। तो आपको बता देता हूं, जैसे नेशनल हॉलीडेज 3 है, ठीक है, जो नेशनल हॉलीडेज को H लिख दिया, नेशनल हॉलीडेज 3 है, और गेजेटेड हॉलीडेज 14 है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बात बोल रहा हूं। और जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है आपको मैक्सिमम 2 मिलेगा रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। ये नॉर्मली नेशनल हॉलीडे क्या है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, और गांधी जयंती है। समझ में आ गया। और जो गेजेटेड हॉलीडेज 14 होता है, 17 मिलता है, और 2 रेस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलेगा। अच्छा देखेंगे, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज आर अकिन टू क्लोज हॉलीडेज। हाँ, क्लोज हॉलीडेज की तरह होता है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड। हाँ, प्रीफिक्स सफिक्स होगा। जैसे आप आज स्टेशन, सपोज कल आपका रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, जैसे सपोज कल संडे है, जैसे मैं बता रहा हूं सैटरडे आफ्टरनून में आप स्टेशन छोड़ दिया, नेक्स्ट संडे है, और मंडे आपका रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, तो संडे वो प्रीफिक्स हो जाएगा। समझ में आया। और वैसा ही जैसे आप सफिक्स कैसे होगा, सैटरडे को सपोज आपका रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, तो संडे सफिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स टू कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ भी प्रीफिक्स और सफिक्स होगा। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको याद कर लीजिए, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज क्लोज्ड हॉलीडेज की तरह होता है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज में जो प्रीफिक्स सफिक्स जैसे रेगुलर लीव में होता है वैसा ही होता है, अभी मैं समझाया। और प्रीफिक्स सफिक्स होगा कैजुअल लीव केस में। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स टू कैजुअल लीव। समझ में आ रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन। 73 लीव नॉट ड्यू के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू क्या है, आपका कोई सर्विस बुक में आपका कोई भी लीव नहीं है, तो आप LND ले सकते हो। तो एंटायर सर्विस में आप जो LND लोगे ना 360 डेज होता है मैक्सिमम। LND लीव नॉट ड्यू 360 डेज आप एंटायर सर्विस में ले सकते हो। और ये जो लीव नॉट ड्यू आप लोगे ना, जो आगे में सब्सिक्वेंट टाइम में आपको जो HPL मिलेगा उससे वो डेबिट होगा। अभी आपका खाते में नहीं है, अब आप लीव नॉट ड्यू लिया, तो वो उसको कैसे कवर अप किया जाएगा ना, आगे में जो आपको HPL मिलेगा उससे वो कंपेंसेट किया जाएगा। तो मैक्सिमम एंटायर सर्विस में आपको 360 डेज लीव नॉट LND मिलता है। LND शैल बी डेबिटेड टू हाफ पे लीव ऑफ द एम्प्लॉय। मैं अभी बताया करेक्ट है, ये करेक्ट पूछा है। LND may be granted if the government servant has put in at least 3 years of service। ऐसा कुछ नहीं है। LND shall be limited to the half pay leave the government servant is likely to earn subsequently। ये भी करेक्ट है, मैं अभी बताया। आपका सर्विस बुक में कोई भी लीव नहीं है, आप LND लेकर जा रहे हो, तो आगे में जो HPL आपको मिलेगा उससे ये लीव को कंपेंसेट किया जाएगा। LND में भी ग्रांटेड अप टू मैक्सिमम 380। मैक्सिमम कितना बोलते हैं, एंटायर सर्विस में 360 डेज मिलेगा। तो ये करेक्ट नहीं है। तो दोनों जो करेक्ट ऑप्शन से A एंड C करेक्ट वन। ऑप्शन 3 ओके, ऑप्शन A ऑप्शन C एक्चुअली करेक्ट वन LND के ऊपर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। 73 क्वेश्चन 73 राइट। क्वेश्चन 74 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर क्वेश्चन है, वुड बी एडमिसिबल टू ए सेंट्रल। कब ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। टेम्पोररी ट्रांसफर जो होता है अप टू 180 डेज होता है, नहीं कि इसमें ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा।
तो आपको यहाँ पर ट्रांजिट टाइम मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। सरप्लस स्टाफ ट्रांसफर, सरप्लस स्टाफ जब ट्रांसफर होते हैं वन पोस्ट टू अनदर, मेरा ज्वाइनिंग टाइम का एक वीडियो देख लीजिए, ये एप्लीकेबल होगा, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा सरप्लस स्टाफ को। फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जैसे आप नो ऑब्जेक्शन, इट मीन्स आप एनओसी लिया और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिया और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर गए, आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए, तो आपका पास्ट सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। तो इस केस में जब आप जो न्यू डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइन कर रहे हो, उस केस में आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, क्योंकि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है, आप परमिशन लिया है और टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर गया, तो यहां पर आपको जो जाकर आप न्यू पोस्ट को जा रहे हो ज्वाइन करने के लिए, यहां पर ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। मगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहे हो तो आपका पास्ट सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। पास्ट सर्विस आपका जो न्यू डिपार्टमेंट में जो आप जॉब करने के लिए जा रहे हो उसके साथ वो इंक्लूड होगा। ओके, पास्ट सर्विस फॉरफिट नहीं होगा। तो ये दिया है। तो यहां पर जो ऑप्शन से ए सी डी करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ए सी एंड डी, तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 75 आज का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ अगेन जॉइनिंग टाइम रूल्स 1979। When holiday follows joining time, the normal joining time may be deemed to have been extended to cover such holidays. ये करेक्ट है। Distance means actual distance traveled as well as weighted mileage for which fare is charged by the railways in certain घाट और हिल regions. ये नहीं है, गलत है। जो weighted mileage दिया as well as weighted, ये नहीं है, गलत है। समझ में आ रहा है? weighted mileage दिया मीन्स ये गलत है। ज्वाइनिंग टाइम में भी कैजुअल लीव के साथ कंबाइंड नहीं होगा, अदर लीव के साथ कंबाइंड होगा, कैजुअल लीव के साथ कंबाइंड नहीं होगा। आप मेरा देख लीजिए, ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर वीडियो है मेरा। ज्वाइनिंग टाइम पे शैल बी पेड फॉर बाय द न्यू, यस, आप ज्वाइनिंग टाइम पे जो है आपको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देगा, वेयर सच गवर्नमेंट सर्वेंट जॉइन्स ऑन ट्रांसफर। नहीं, ये भी मेरा वीडियो ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर आप देख लीजिए, ये करेक्ट वन। तो यहां पर बता देता हूं, जैसे आप ज्वाइनिंग टाइम आपका सैटरडे में खत्म होता है और नेक्स्ट संडे है, आपका ज्वाइनिंग टाइम सैटरडे खत्म होता है, संडे है, तो बेसिकली आप कब जाकर ज्वाइन करोगे? मंडे में। तो यहां पर बेसिकली संडे भी एक एक्सटेंशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सफिक्स होगा, प्रीफिक्स नहीं होगा, ये सफिक्स हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। संडे को आपका ज्वाइनिंग टाइम खत्म हो रहा है और संडे आप भी कवर कर लेंगे, वही है फर्स्ट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन देखिए, सपोज ज्वाइनिंग टाइम जो पे है आपको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो जाकर न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो आपको वो ज्वाइनिंग टाइम पे देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया ए एंड क्या दिया है यहां पर? नॉट करेक्ट दिया है। ओहो, नॉट करेक्ट क्रॉस में लगा दिया, देखो। तो ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन। ऑप्शन 1 आंसर इज ऑप्शन 1, राइट। तो बी एंड सी में क्रॉस लगे, दोनों एक्चुअली नॉट करेक्ट दिया है। नॉट करेक्ट मींस में क्रॉस लगा दिया, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन। समझ में आ गया? तो आज इतना ही था। नेक्स्ट अनदर लास्ट 25 क्वेश्चंस अगेन आई विल अपलोड, ठीक है। तो प्लीज माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel and share my channel so that you can get quality videos in future. Thank you and namaskar to all of you.